Hello everyone. We were discussing about the topic architecture of 8086 in the previous lecture, and we discussed that the architecture of 8086 can be divided into two units. One is called as BIU, that is bus interface unit, and the other section is called as EU or execution unit. So we were discussing about the bus interface unit, and in the bus interface unit we discussed about the queue, and we discussed that the bus interface unit contains segment registers, instruction pointer, address summer, instruction queue, and bus control logic. And what are the various functions which can be performed by the bus interface unit? So the bus interface unit can fetch the instructions or read the data from the memory, and also it can read the data from the port, it can write the data into the port, and it also supports the instruction queuing, which is one of the special feature of the 8086 if we compare 8086 with 8085 microprocessor. So we are discussing about the queue. Okay, we have discussed it in the previous lecture. It is used to implement a pipeline architecture because the क्योंकि जब execution unit जो है, the execution unit when executes one of the instruction at the same time, the bus interface unit can supports can support the queuing with the help of this queue, and can fetch the instructions ahead of the time. So it supports the queuing of up to 6 bytes of instruction code. We are discussing about the bus interface unit, and in bus interface unit we have discussed the this section that is called as instruction stream byte queue. We have discussed about this section. Okay, the functions of BIU bus interface unit are as follows. First function is to fetch the instructions or to read the data from memory. The second function is to write the data into memory. Third function is to read the data from the memory. The fourth function is to write the data into port, and also it supports instruction queuing. Okay, so bus interface unit also contains or consists of four 16-bit segment registers, and the 16-bit segment registers are named as code segment register, data segment register, extra segment register, and stack segment register. Now the second unit, which is called as execution unit of the 8086 architecture. तो कौन कौन से फंक्शंस हैं एग्जीक्यूशन यूनिट के? तो जैसे बस इंटरफेस यूनिट क्या है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, तो एग्जीक्यूशन यूनिट बस इंटरफेस यूनिट को ये बताता है कि जो इंस्ट्रक्शन है इसको कहाँ से फेच करना है. इट टेल्स अबाउट द लोकेशन फ्रॉम वेयर टू फेच द इंस्ट्रक्शन. दिस इज डन बाय द execution unit. Okay, and other functions are also like it decodes the instructions fetched by the BIU. बस इंटरफेस यूनिट जिन इंस्ट्रक्शंस को फेच करके क्यू में स्टोर करता है, उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो फेच करता है. ठीक है, और फेच करने के बाद उसको डिकोड फेच करने के बाद जो बस इंटरफेस यूनिट जो जिन इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, एग्जीक्यूशन यूनिट उनको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद उनको एग्जीक्यूट करने का भी काम जो है एग्जीक्यूशन यूनिट का है. और एग्जीक्यूशन यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को भी जनरेट करता है. इट ऑल्सो जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स. And what are the main parts or what are the main blocks of execution unit? So we can see in this figure, this is figure related to the execution unit, and the main parts are here. This is the control circuitry and instruction decoder and arithmetic and logic unit, and also some registers. ठीक है, तो ये जो है वो कुछ पार्ट्स हैं एग्जीक्यूशन यूनिट को, जिसको हम वन बाय वन आगे देखेंगे.
तो हम रजिस्टर से शुरू करते हैं। हमने अभी तक क्या क्या समझा 8086 के आर्किटेक्चर के बारे में, कि आर्किटेक्चर जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, और जो दो पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से सेक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रजिस्टर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रजिस्टर्स ऑफ 8086। यहाँ पर बस इंटरफेस यूनिट, वी कैन सी हियर, बस इंटरफेस यूनिट में जो हमने जो रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, मतलब कि कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, 4 सेगमेंट रजिस्टर, और ये एक आईपी दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, ये बस इंटरफेस यूनिट के रजिस्टर्स हो गए। उसके अलावा जो एग्जीक्यूशन यूनिट के रजिस्टर्स हैं, AH, AL, BH, BL, CS, CL, DH, TL एंड SP, BP, SI, DI। तो ये जो सारे रजिस्टर्स हैं इनको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि what are the function of these different registers. Okay, so let's start the registers of 8086. The Intel 8086 contains the following registers. All of these registers can be classified in the following categories. The first category is general purpose registers. Second, segment registers. Third, pointer and index registers. Fourth, status flags. Okay, and all of these registers are of 16 bits, means these registers can store up to 16 bits. तो अगर हम जनरल पर्पज रजिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जनरल पर्पज रजिस्टर्स जो हैं that are represented here and named as AX, BX, CX and DX. These are 16-bit registers, okay, and further divided into two 8-bit registers. Like AX is divided into AH and AL, which are of 8-bit registers. BX is divided into BH and BL of 8-bit each. CX is divided into CH and CL of 8-bit each, and DX is divided into DH and DL of 8-bit each. These are general purpose registers. Then segment registers. Segment registers are also of 16 bits, and the name of segment registers are code segment, data segment, extra segment and stack segment register. Third kind of registers are pointer and index registers. So these are the pointer and index registers of 16-bit. Pointer registers की बात करें तो बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर. इंडेक्स रजिस्टर्स की बात करें तो सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर्स हैं ये. ठीक है. स्टेटस फ्लैग्स और ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड फ्लैग्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और स्टेटस फ्लैग्स. ठीक. तो ये फ्लैग रजिस्टर है जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे डिटेल में. अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं 8086 में, एंड वन बाय वन वी विल सी अबाउट दीज रजिस्टर्स इन डिटेल. जनरल पर्पस रजिस्टर से शुरू करते हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर्स. ओके, देयर आर 4 16-bit जनरल पर्पस रजिस्टर्स and which are named as AX, BX, CX and DX. तो कौन कौन से नाम है जनरल पर्पस रजिस्टर्स के? AX, BX, CX और DX. और ये जो 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं 16 बिट्स के, ये फर्दर 8 बिट के रजिस्टर्स में डिवाइड करे जाते हैं. ईच ऑफ दीज रजिस्टर्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 8-bit रजिस्टर्स. कौन कौन से 8-bit रजिस्टर्स? तो AX, अगर AX की बात करें तो AX दो 8-bit के रजिस्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, AH और AL. ओके, AH is also of 8 bits and AL is also of 8 bits, and combinedly these registers are called as AX, which is of 16 bits. Similarly, BX can also be subdivided into two 8-bit registers named as BH and BL. This AX register is also called as accumulator. This BX register is also called as base register. Then CX.
CX register is also subdivided into two 8-bit registers named as CH and CL, and it is also named as counter. Then DX can also be subdivided into two 8-bit registers named as DH and DL, and it is also called as data register. Okay, so these are general purpose registers which are named as AX, BX, CS and DX, and each of these general purpose registers can be further subdivided into two 8-bit registers. ठीक है, अब देखते हैं कि AX रजिस्टर का क्या फंक्शन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ AX रजिस्टर? तो अगर AX रजिस्टर की बात करें तो AX रजिस्टर को एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटर रजिस्टर. ठीक है, अब एक्यूमुलेटर है तो इसका मतलब है कि ज़रूर इसका फंक्शन जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में यूज होता होगा. ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू 8-bit रजिस्टर्स AL एंड AH which can be combined together and used as a 16-bit register as AX. ठीक है, और जो AL रजिस्टर है, AL रजिस्टर अगर मान लीजिए कि 16-bit वैल्यू को स्टोर कराना है तो उस केस में जो लोअर 8-bit वैल्यू होगी या जो लोअर ऑर्डर बाइट होगा वो AL रजिस्टर में स्टोर होगा, और जो हायर ऑर्डर 8-bit वैल्यू होगी या जो हायर ऑर्डर बाइट होगा वो AH रजिस्टर में स्टोर होगा. ओके, so AL in this case contains the low order byte of the word, and word is of 16-bit in this case, in the 8086 case, and AH contains the high order byte of the word. Okay, it is also known as accumulator register. और ये कौन कौन से instructions में use होता है? So the IO instructions use the AX or AL from inputting or outputting 16 और 8-bit data to or from input output port. जैसा कि हमने 8085 में पढ़ा था कि अगर डेटा को प्रोसेसर एक्यूमुलेटर से अगर डेटा को एक्यूमुलेटर से आउटपुट पोर्ट पर या इनपुट पोर्ट से एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करना है तो उसमें उसके लिए एक्यूमुलेटर का यूज़ किया जाता है. अगर डेटा को प्रोसेसर से आईओ पोर्ट के बीच में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एक्यूमुलेटर का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर 8086 में भी जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें डेटा का ट्रांसफ़र इनपुट आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में होता है, वहाँ पर एक्यूमुलेटर या AX AL रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है. सो द IO इंस्ट्रक्शंस यूज द AX और AL फॉर इनपुटिंग और आउटपुटिंग 16 और 8-bit डेटा टू और फ्रॉम द इनपुट और आउटपुट पोर्ट. ये तो हो गई एक फंक्शन. फिर इसका दूसरा फंक्शन है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है ये एक्यूमुलेटर. Multiplication and division instructions also use the AX or AL. तो कौन कौन से instructions हो गए? In some instructions like multiplication, division, in instruction, out instruction, etc., the microprocessor will use AL as 8-bit accumulator and AX as 16-bit accumulator. ठीक है, अगर 8-bit accumulator का यूज करना है तो in that case AL will be used, and if the 16-bit accumulator is to be used, then in that case AX will be used. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरल पर्पस रजिस्टर है कौन सा? BX रजिस्टर. तो जो BX रजिस्टर है इसे बेस रजिस्टर भी कहते हैं, और इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू 8-bit रजिस्टर्स BL and BH which can be combined together and used as a 16-bit register BX. तो BX को भी फर्दर दो रजिस्टर में सब डिवाइड किया जा सकता है. जब अगर 16-bit वैल्यू को स्टोर करना है तो BX रजिस्टर का यूज होगा, और अगर 8-bit के रूप में यूज करना है तो BL और BH का यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो BL का क्या काम है? तो BL का अगर मान लीजिए कि 16-bit की वैल्यू है तो उसका जो लो ऑर्डर बाइट होगा वो BL में स्टोर होगा, और जो हाई ऑर्डर बाइट होगा वो BH में स्टोर होगा. BL in this case contains the low order byte of the word and BH contains the high order byte of the word. Okay? ठीक है, और ये भी जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, and this is the only general purpose register whose contents can be used for addressing the 8086 memory. तो बेस रजिस्टर का या BX रजिस्टर का क्या काम है? In most of the memory related instructions,
This register is used to store the 16-bit effective address of the corresponding memory location. तो ये मेमोरी लोकेशन के इफेक्टिव एड्रेस को स्टोर करने के लिए बेस रजिस्टर का यूज किया जा सकता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं मेमोरी को पॉइंट करने के लिए. ओके, एंड इट इज मेनली यूज्ड एज बेस रजिस्टर and holds the starting base location of a memory region within a data segment. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेमोरी है उसको कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो उसमें से जो एक डेटा सेगमेंट होगा मेमोरी रीजन में, तो उसका जो स्टार्टिंग बेस लोकेशन होगा, उसका जो एड्रेस है वो बेस रजिस्टर उसको होल्ड करता है, ठीक है. ओके, देन द नेक्स्ट जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो CX है, CX रजिस्टर. एंड CX रजिस्टर को काउंटर भी कहते हैं, काउंटर की तरह इसका यूज किया जाता है. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 8-bit registers CL and CH which can be combined together and used as a 16-bit register CX. अगर 16-bit रजिस्टर की तरह यूज करना है तो CX रजिस्टर का यूज होगा, और अगर 8-bit रजिस्टर का यूज करना है तो CL का यूज कर सकते हैं. और 16-bit वैल्यू को स्टोर कराने के लिए जो लोअर बाइट होगा वो CL रजिस्टर में स्टोर होगा, और जो हायर बाइट होगा वो CH रजिस्टर में स्टोर होगा. ओके, when combined, CL register contains the low order byte of the word and CH contains the high order byte. और इसका यूज कहाँ होता है, इसे काउंटर की तरह डिफाइन किया जाता है, और इसका यूज कहाँ होता है, तो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आगे हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो जो स्ट्रिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पर जो CX रजिस्टर है उसका यूज काउंटर के रूप में होता है, ठीक है. इसी तरह से जो रोटेट या शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें भी CL का यूज 8-bit काउंटर की तरह हो सकता है. तो जो ऐसे इंस्ट्रक्शंस सच एज शिफ्ट, रोटेट या लूप, तो उनमें जो CX रजिस्टर है उसका यूज काउंटर की तरह होता है. DX register is also a general purpose register which is called as data register. It also consists of 2 8-bit registers named as DL and DH, and which can be combined together and used as a 16-bit register DX, ठीक है. तो DL रजिस्टर जो अगर 16-bit वैल्यू को अगर स्टोर करना है DX में, तो जो लो ऑर्डर बाइट होगा वो DL रजिस्टर में स्टोर होगा, और जो हाई ऑर्डर बाइट होगा वो DS रजिस्टर में स्टोर होगा. इसे डेटा रजिस्टर भी कहते हैं. और ये कौन से इंस्ट्रक्शंस में यूज होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा और रिजल्ट इन सम इंस्ट्रक्शंस लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा. तो डेटा रजिस्टर जो है इसका मेन पर्पज है डेटा को स्टोर करने के लिए या रिजल्ट को स्टोर करने के लिए. कौन से रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनका जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, डेटा रजिस्टर में, ठीक है. और इसके अलावा जो इन और आउट इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें जो 16-bit का पोर्ट एड्रेस होता है वो भी DX रजिस्टर में स्टोर होता है. ओके, तो कौन कौन सी चीज़ें स्टोर होती हैं, डेटा रजिस्टर, DX रजिस्टर जो है जिसे डेटा रजिस्टर भी कहते हैं, तो इसमें जो डेटा को स्टोर किया जा सकता है, या कुछ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो भी DX रजिस्टर में स्टोर कराया जा सकता है, या जो इन और आउट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हैं उनमें जो 16-bit का पोर्ट एड्रेस यूज होता है वो भी DX रजिस्टर में स्टोर कराया जा सकता है. So these are the 4 general purpose registers which are named as AX, BX, CX and DX, and we have discussed about the operations related to these general purpose registers. Okay, the next type of registers are segment registers. तो सेगमेंट रजिस्टर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. पहले हम लोगों ने जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, अब सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सेगमेंट रजिस्टर का को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 8086 के लिए मैक्सिमम मेमोरी का जो कैपेसिटी है कितने की यूज की जा सकती है, 1 मेगाबाइट की, जो कि हमने देखा था कि इसका एड्रेस लाइन 20 होता है, तो 2 to the power 20 से 1 मेगाबाइट की मैक्सिमम मेमोरी कनेक्ट की जा सकती है 8086 से. तो ये जो 1 मेगाबाइट की मेमोरी है वो कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है,
और हर सेगमेंट मैक्सिमम 64 किलोबाइट का होता है, ठीक है। तो जो मेमोरी है वो कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और the 8086 1 megabyte memory is divided into segments of up to 64 kilobytes each. और ये जो 8086 है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं मेमोरी के, उनको ऐसे नाम दे सकते हैं, आगे हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसे। तो अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिसमें मेमोरी को डिवाइड किया जा सकता है। तो कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये 4 सेगमेंट हैं जिनमें मेमोरी को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो 8086 कैन डायरेक्टली एड्रेस 4 सेगमेंट्स दैट आर नेम्ड एज कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो 8086 4 सेगमेंट को एड्रेस कर सकता है एक ही टाइम पर। कैसे एड्रेस कर सकता है? सो विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट रजिस्टर्स। तो सेगमेंट रजिस्टर्स का यही पर्पज है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं मेमोरी के, उनके स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेगमेंट रजिस्टर। A segment register points to the starting address of a memory segment currently being used. The maximum capacity of a segment may be up to 64 kilobytes. Okay. So there are 4 segment registers in the Intel 8086. Intel 8086 में 4 segment registers होते हैं टोटल। कौन कौन से? कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। तो अब वन बाय वन देखते हैं कि कौन से सेगमेंट रजिस्टर का क्या फंक्शन है। तो जो कोड सेगमेंट रजिस्टर से शुरू करते हैं, कोड सेगमेंट रजिस्टर, इट इज यूज्ड टू होल्ड द अपर 16 बिट्स ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस फॉर ईच ऑफ द सेगमेंट्स। अगर हम सेगमेंट रजिस्टर की बात करें पहले, तो सेगमेंट रजिस्टर क्या होल्ड करता है? सेगमेंट रजिस्टर जो है वो किसी भी सेगमेंट के अपर 16 बिट जो है स्टार्टिंग एड्रेस, जो कि 16 बिट, उसको होल्ड करता है, ठीक है। अब हम कोड सेगमेंट की बात करें तो ये किसके स्टार्टिंग एड्रेस को होल्ड करेगा? कोड सेगमेंट। मेमोरी का जो कोड सेगमेंट होगा, इट विल पॉइंट टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट। और वी कैन ऑल्सो से दैट द कोड सेगमेंट रजिस्टर कैन hold the upper 16 bit of the starting address of the code segment of the memory. तो CS या कोड सेगमेंट रजिस्टर जो है वो 16 बिट का रजिस्टर है। इट इज अ 16 बिट रजिस्टर containing addresses of 64 kilobyte segment with processor instructions. मीन्स कि यहाँ पर कोड सेगमेंट की बात हो रही है, क्योंकि कोड सेगमेंट में ये जो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर होते हैं, तो कोड सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। द प्रोसेसर यूजेस CS कोड सेगमेंट रजिस्टर फॉर ऑल एक्सेसेस टू इंस्ट्रक्शंस रेफरेंस्ड बाय द IP रजिस्टर विच इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। एंड कोड सेगमेंट रजिस्टर कैन नॉट बी चेंज्ड डायरेक्टली। इसे डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। फॉर जंप, फॉर कॉल और फॉर रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में ये अपने आप अपडेट होता है, इसे चेंज डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। CS रजिस्टर कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली बट ऑटोमेटिकली अपडेटेड ड्यूरिंग फॉर जंप, फॉर कॉल एंड फॉर रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। तो ये कोड सेगमेंट की बात हो गई कि कोड सेगमेंट क्या करता है? इट पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट रजिस्टर है दैट इज कॉल्ड एज डेटा सेगमेंट रजिस्टर, और ये भी 16 बिट का रजिस्टर होता है जो कि डेटा सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है। इट पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी। तो इट डेटा सेगमेंट की अगर बात करें तो इट इज अ 16 बिट रजिस्टर containing addresses of 64 किलोबाइट सेगमेंट विथ प्रोग्राम डेटा। क्योंकि जो डेटा सेगमेंट है, जो मेमोरी सेगमेंटेशन में हम पढ़ेंगे वहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कराए जाते हैं। तो ये जो डेटा सेगमेंट है वहाँ पर प्रोग्राम डेटा स्टोर कराई जाती है। तो इस ये जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर क्या करेगा? ये डेटा सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करेगा। इट इज यूज टू पॉइंट द starting address of the data segment in the memory. Okay,
By default, the processor assumes that all data referenced by general registers and index registers is located in the data segment. तो डेटा सेगमेंट में जैसा कि हम बताया मैंने आपको कि डेटा सेगमेंट में जितने भी डेटा हैं वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, डेटा सेगमेंट में, चाहे वो जनरल पर्पस रजिस्टर से रिलेटेड हो या इंडेक्स रजिस्टर से रिलेटेड हो, वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होती हैं. ठीक है. अब द नेक्स्ट सेगमेंट रजिस्टर दैट इज नेम्ड एज स्टैक सेगमेंट रजिस्टर. तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर भी एक 16 बिट का रजिस्टर होता है और इसका क्या क्या काम है. तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है जो ये जो स्टैक सेगमेंट होता है मेमोरी में उसके स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो अ 16 बिट रजिस्टर containing address of 64 किलोबाइट सेगमेंट विद प्रोग्राम स्टैक. जो स्टैक सेगमेंट है उसके स्टार्टिंग एड्रेस को स्टैक सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट करता है. बाय डिफॉल्ट the processor assumes that all data referenced by the stack pointer and base pointer registers is located in the stack segment. तो स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर जो रजिस्टर्स हैं, अभी हमने पॉइंटर रजिस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, सेगमेंट रजिस्टर्स के बाद पढ़ेंगे. जो स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर जो रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर्स के थ्रू जिस भी डेटा को पॉइंट आउट किया जा रहा है वो रजिस्टर्स कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, वो स्टैक सेगमेंट में स्टोर्ड होते हैं. ठीक है. और स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो स्टैक सेगमेंट के जो इनिशियल वाला जो एड्रेस है उसको पॉइंट करता है. और स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं. सो द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर कैन बी चेंज डायरेक्टली बाय यूजिंग द पॉप इंस्ट्रक्शन. पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज करके स्टैक सेगमेंट में जो वैल्यू है उसको चेंज किया जा सकता है. ठीक है. तो ये जो कौन कौन से रजिस्टर्स हो गए, सेगमेंट रजिस्टर्स, हमने 3 रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा. एक और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स है जो सेगमेंट इट इज आल्सो वन ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर. एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर जो है वो भी 16 बिट का रजिस्टर होता है और ये किसको पॉइंट करता है, ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी में है उसके स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है. इट पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द extra segment in the memory and it is also of the 16 bits. It is a 16 bit register containing addresses of 64 kilobyte segment usually with program data, and by default the processor assumes that the DI register that is destination index register references the the extra segment in string मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस. ये जो यहाँ पर जो रजिस्टर आया है DI, दिस इज द टर्म DI दैट इज डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर. सेगमेंट रजिस्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर के बारे में, वहाँ पर DI के बारे में पढ़ेंगे. तो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर का काम क्या है, इट पॉइंट्स टू द which segment, it points to the starting address of the extra segment in the memory and it is of a 16 bit register. ठीक है. तो ये सेगमेंट रजिस्टर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है. कौन कौन से सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर. और ये डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है मेमोरी के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, क्योंकि 1 मेगाबाइट की मेमोरी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, तो उन डिफरेंट सेगमेंट्स को पॉइंट करने के लिए इन डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर्स का यूज किया जाता है. ठीक है. तो हम आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने जो 2 आर्किटेक्चर के यूनिट्स हैं, आर्किटेक्चर के जो 2 यूनिट्स हैं, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट, तो उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया है. तो कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्किटेक्चर को समझा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आर्किटेक्चर. नाउ वी आर डीलिंग विथ ईच ब्लॉक. तो कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, तो रजिस्टर्स में भी हमने देखा कि कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर्स, यहाँ पर हमने देखा जनरल पर्पस रजिस्टर्स और पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स और स्टेटस और फ्लैग से रिलेटेड रजिस्टर. तो ये जो रजिस्टर्स हैं इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है, जिसमें से हमने जनरल पर्पस रजिस्टर्स और सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में इस लेक्चर में पढ़ा. जो नेक्स्ट रजिस्टर्स हैं
पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स और फ्लैग इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने, अगर हम इसकी कंपैरिजन करें 8086 माइक्रो प्रोसेसर से, तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितने रजिस्टर्स, कितने जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे वहाँ पर, तो BCDEHL, और हर रजिस्टर जो है वो 8 बिट का था, जनरल पर्पस रजिस्टर। और जो BCDEHL हैं उनको 8 बिट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकता है या 16 बिट वैल्यू को भी स्टोर कराने के लिए यूज़ किया सकता है एज ए पेयर के रूप में। तो कौन कौन से पेयर के फॉर्म में रजिस्टर्स होते हैं, BC रजिस्टर पेयर, DE रजिस्टर पेयर एंड HL रजिस्टर पेयर। ये 8085 की बात हो रही है। तो ये 8085 में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। और अगर हम 8086 की बात करें तो यहाँ पर AX, BX, CX और DX, ये टोटल 4 16 बिट रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। और इन रजिस्टर्स को फर्दर 8 बिट्स रजिस्टर्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जिनको नाम दिया गया है AHAL, BHBL, CHCL और DHDL, ठीक है। इसके बाद हमने सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, और जो नेक्स्ट पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर और स्टेटस फ्लैग्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और 8085 की अगर बात करें तो 8085 में कौन कौन से रजिस्टर्स की कैटेगरी होती है, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर, जैसे हमने 8085 में पढ़े थे आर्किटेक्चर में, वैसे ही 8086 का भी आर्किटेक्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी हर रजिस्टर का जो फंक्शन है, यहाँ पर जैसे सेगमेंट रजिस्टर्स है, तो सेगमेंट रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट इसमें नया है क्योंकि मेमोरी इसमें सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर हम हर रजिस्टर का फंक्शन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं कौन से रजिस्टर के, ओके। So the pointer and index register and status flags will be discussed in the next lecture. Thank you.